states, we have started almost in the states. In Tamil Nadu, seat sharing arrangement was complete. Already, I used to meet Mr. Lalu ji and Mr. Tejashwi. We must fight these elections together and defeat BJP and its allies. RJD, CPI, CPM, ML, Congress, we are all clear. We are united on that issue. We will have to wait and see because there are talks going on with other parties also. बेगूसराय का सीट में कमरेड अवधेश राय वहाँ कैंडिडेट बनेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। बेगूसराय सीट सीपीआई के खाते में गई है। डी राजा ने औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया है, साफ तौर पर कहा है कि बेगूसराय सीट तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के बाद सीपीआई के खाते में गई है। हालांकि सीट शेयरिंग का मसला अभी तक सुलझा नहीं है, मगर डी राजा ने बीते दिनों मुलाकात की थी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की थी और उसके बाद बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया कि बेगूसराय लोकसभा सीट सीपीआई के पास ही रहेगी। देखिए, 2019 में कन्हैया कुमार चुनाव लड़े थे और इस बार उम्मीदवार सीपीआई के होंगे और उम्मीदवार के नाम की भी घोषणा हो गई है। देखिए, डी राजा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, अवधेश कुमार राय बेगूसराय से उम्मीदवार होंगे। तेजस्वी यादव से मुलाकात की, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से डी राजा ने बीते दिनों मुलाकात की थी और उसके बाद ये ऐलान कर दिया है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। सबसे पहले आप डी राजा को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं अभी भी एक सीट पर और बातचीत चल रही है। वो सीट कौन सी होगी, सबसे पहले डी राजा को सुनिए। We are having seat sharing negotiations with other allies. We have started our campaign in the states. We have started almost in the states. For instance, in Tamil Nadu, seat sharing arrangement was complete. In other states are also we are completing seat sharing arrangement. In Bihar, we came. Already I used to meet Mr. Lalu ji and Mr. Tejashwi. We identified some seats, we conveyed to them. Yesterday we had a meeting with Mr. Tejashwi and we had some discussion on seat sharing arrangement in the state of Bihar, and politically we are clear, we are united. We must fight these elections together and defeat BJP and its allies. That is clear. RJD, CPI, CPM, ML, Congress, we are all clear. We are united on that issue. Coming to the seat sharing arrangement, there are talks going on. There are talks going on. Our party also had talks with Mr. Tejasvi and talks are open also. One thing has been made clear. As far as our party is concerned, our party will fight the Begusarai seat. It has been almost agreed. It has been almost agreed. Begusarai seat, CPI will contest. But we are negotiating for one more seat. How it is going to be settled, we will have to wait and see because there are talks going on with other parties also. So we will have to wait and see. But as of now, our party will contest Begusarai seat. For one more seat, we are hopeful, we are talking, negotiating. This is Bihar.
But why there is delay in seat setting? Let him complete. Now let him complete. Continue. That's what, because we are, Be the candidate of CPI ML or the CPI on that seat. where, The second seat where you are negotiating. नहीं हम लोग ने एक चीज क्लियर कर दिया कि सीट शेयरिंग का चर्चा अभी खत्म नहीं हुआ है। जब खत्म होगा महागठबंधन का तरफ से आपको पूरा सूची दिया जाएगा। अभी हम लोग को बेगूसराय सीट मिला है और बेगूसराय का सीट में कल हमारा पार्टी का एग्जीक्यूटिव का बैठक हुआ। हमने ये तय कर चुके हैं एग्जीक्यूटिव में कॉमरेड अवधेश राय वहाँ कैंडिडेट बनेंगे बेगूसराय नहीं। में। बाकी का चर्चा होगा। I am telling you, Begusarai has been conceded to CPI, and I do not think there will be any change. So Begusarai, our party will contest. And no, listen. And candidate Avdesh Roy. Avdesh Roy is the district secretary of our party. Begusarai district secretary of our party. Okay. And we are negotiating for one more seat that we will wait. You please wait. Once we reach the final stage, we will inform. तो आपने सुना सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव है डी राजा, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बीते दिनों तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी और उसके बाद फैसला लिया गया है बेगूसराय सीट पर सीपीआई अपने उम्मीदवार को आगे करेगी, यानी कि अपने पहलवान को बेगूसराय सीट पर सीपीआई आगे करेगी और पहलवान के नाम भी तय कर दिए गए, उसके नाम की भी घोषणा हो गई है। देखिए, सीपीआई अवधेश कुमार राय को बेगूसराय सीट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने जा रही है, स्पष्ट हो गया है। वहीं डी राजा ने यह भी कहा है कि फिलहाल महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग की बातें अभी तय नहीं हुई है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर फैसला ले लिया गया है, मगर कांग्रेस हो या लेफ्ट की पार्टियां हो, सभी लोग एकजुट हैं और इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डी राजा ने जिस तरीके से उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है, एक बार फिर से सियासत गर्म हो गया है। बेगूसराय हॉट सीट बना हुआ था, सभी की नज़र बेगूसराय लोकसभा सीट पर थी कि आखिर बेगूसराय लोकसभा सीट किसके खाते में जाएगा। और डी राजा बीते दिनों उन्होंने मुलाकात की तेजस्वी यादव से और सब कुछ तय हो चुका है। उम्मीदवार सीपीआई के होंगे, उम्मीदवार अवधेश कुमार राय होंगे। वहीं अब भी एक सीट और की मांग सीपीआई कर रही है, यानी कि सीपीआई का कहना है कि सीपीआई 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। एक सीट बेगूसराय की मिल चुकी है और एक सीटों पर बातचीत और चल रही है, यानी कि अब देखने वाली बात ये होगी कि तेजस्वी यादव क्या 2 सीट देंगे सीपीआई को। वही महागठबंधन के अंदर सीटों को लेकर के अब भी बातचीत चल रही है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी हो गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तो सिंबल भी बांटने शुरू कर दिए हैं। बीते दिनों की अगर आप तस्वीरें देखें तो बाखूबी हमने आपको अपडेट किया है किस तरीके से लालू प्रसाद यादव तमाम अपने पहलवानों को, तमाम उम्मीदवारों को चुनावी सिंबल बांट रहे थे। वहीं देखिए, बेगूसराय सीट पर अब सीपीआई चुनाव लड़ेगी, सब कुछ साफ हो चुका है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।